Hello students, so let us start with unconventional monetary policy measures. देखिए आरबीआई के पास कुछ कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एट्सेट्रा। इसके अलावा कुछ अनकन्वेंशनल टूल्स भी हैं आरबीआई के पास which are used in certain specific situation or when there is certain kind of problem arises in the economy. So these are the measures which are not taken normally but taken in certain exceptional situation. First example of this unconventional monetary policy measure is the rupee dollar swap auctions by the RBI. This type of auction was done by RBI in the year 2019. जो स्वैप है, स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज एंड ऑक्शन का मतलब हम सब जानते हैं नीलामी या फिर हम कह सकते हैं बिडिंग. सो दिस इज़ अ रुपी डॉलर एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग और ये आरबीआई ने 2019 में किया था. चलिए इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ. सपोज दिस इज़ आरबीआई and these are different banks. In 2019, RBI bought 5 billion US dollars from the banks, and in return RBI gave rupees to the bank. At that time, $1 was equal to 70 rupees. Therefore, RBI gave 35,000 crore Indian rupees to the banks in return of 5 billion US dollar. Therefore, through this swap auction mechanism, 35,000 crore of Indian rupees was put into the banks. आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि मैं आपसे अभी 5 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय कर रहा हूँ and RBI will sell this 5 billion US dollars back to the banks after 3 years. So this was the arrangement done in 2019. So I will repeat again. So in this rupee dollar swap, it's a kind of swap, it's a kind of exchange for one currency in return of another currency. RBI will take dollar from the banks and in return will give rupees to the banks. So in 2019, RBI took 5 billion US dollars from the banks and gave 35,000 crore rupees to the banks approximately with an exchange rate of $1 is equal to 70 rupees with the promise that after 3 years it will sell this foreign currency back to the banks. Therefore, in rupee dollar swap, RBI agrees to buy a certain amount of foreign currency such as US dollar from banks at a predetermined exchange rate. The RBI also agrees to sell the foreign currency back to the banks on a later date based on the exchange rate that is determined through auction process. So after 3 years, RBI will give back 5 billion US dollars and again in return banks will pay 35,000, not 35,000. How much banks will pay to the RBI? After 3 years, banks will not pay 35,000 US dollar, 35,000 crores to the RBI for the 5 billion US dollar that they will get from the RBI. So after 3 years, another it is decided now. 2019 में ही ये डिसाइड कर लिया गया कि 3 साल के बाद आरबीआई बैंक्स को 5 बिलियन यूएस डॉलर वापस देगा, लेकिन बदले में जब वो कितना पैसा लेगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा उस टाइम पे. तो 2019 में डिसाइड कर लिया कि एक्सचेंज रेट जो होगा $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज़. ये एक्सचेंज रेट यूज़ किया जाएगा. तो इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से अब बैंक्स को कितना पे करना पड़ेगा? बैंक्स को पे करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़. तो बैंक्स ने लिया था, बैंक्स ने 35,000 करोड़ के बदले 5 बिलियन यूएस डॉलर्स आरबीआई को दिए थे. बट 3 साल बाद ये डिसाइड हो चुका है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन, नीलामी के थ्रू, कि भाई अब बैंक्स को जब आरबीआई 5 बिलियन डॉलर वापस देगा देन बैंक्स हैव टू पे 39,000 करोड़.
रुपीज़। ऑक्शन के थ्रू कैसे होगा? भाई आरबीआई ऑक्शन करेगा कि भाई मैं उसी बैंक को इतने बिलियन या इतने अमाउंट यूएस डॉलर दूंगा जो कि मुझे प्रॉमिस करेगा कि 3 साल बाद वो मुझे मैक्सिमम एक्सचेंज रेट पर पैसा वापस करेगा। तो मान लीजिए कुछ बैंक्स ने बोला होगा कि भाई हम 77 $1 इज इक्वल टू 77 रुपीज़ के एक्सचेंज रेट पे आपको वापस कर देंगे। कुछ ने बोला होगा कि $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज़ के उस पर हम आपको वापस कर देंगे। तो इस तरह से ऑक्शन हुई होगी, और जो जिसमें आरबीआई को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आरबीआई ने वो एक्सचेंज रेट वाले बैंक्स को यूएस डॉलर्स दे दिए। सो दिस $1 इज इक्वल टू 78 इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग डन बाय हुम? बिडिंग डन बाय आरबीआई। तो इस रुपी डॉलर एक्सचेंज स्वैप सिस्टम से क्या होगा? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, क्योंकि आरबीआई ने 5 बिलियन यूएस डॉलर बैंक से लिए और जो है 35,000 करोड़ रुपीज़ को इन्फ्यूज़ कर दिया बैंकिंग सिस्टम के अंदर। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे जो आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। देयरफॉर इट विल इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व्स एंड इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट एप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। जब भी रुपी की रिलेटिव टू यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी, देन रुपी विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग, and by infusing money, by infusing rupees into the system, it will depreciate the currency and it will prevent the appreciation of the rupee. Now the next question is, मान लीजिए 2019 के अंदर आरबीआई ने बैंक से 5 बिलियन यूएस डॉलर्स लिए विद द प्रॉमिस कि भाई 3 साल के बाद 22 में 2022 के अंदर आरबीआई विल गिव बैक 5 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड इट विल टेक 39,000 करोड़ रुपीज़। तो जब 2022 के अंदर क्या होगा? जब आरबीआई बैंक से 39,000 करोड़ रुपीज़ अपने पास लेगी तो उससे क्या होगा? रुपी विल एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट? द आंसर इज रुपी विल एप्रिशिएट, बिकॉज नाउ आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इन द इंडियन इकोनॉमी, देयरफॉर रुपी विल एप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर। Therefore, rupee dollar swap के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सेकंड, टू इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व, एंड थर्ड, टू प्रिवेंट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब इसके बाद जब भी आप न्यूज़पेपर के अंदर रुपी डॉलर स्वैप के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो यू कैन रिलेट विद द करंट अफेयर्स। आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होंगी तो करंट अफेयर्स को पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। तो दैट इज़ वाई मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं इन वीडियोस के थ्रू आपके जो बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर कर दूँ, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और उस फाउंडेशन के ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड आईफल टावर ऑन दिस, यू कैन बिल्ड एनी हाउस ऑन दिस। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रुपी डॉलर स्वैप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बताइए। आई विल रीड द कमेंट। योर पॉजिटिव फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल मोटिवेट मी टू मेक more such videos. Thank you so much.